Even when I was a student, I used to have some of these books, एक दो बुक्स की हार्ड कॉपीज, बट वो कौन सी होनी चाहिए, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनालिटी. आई वाज आर डी शर्मा काइंड. कौन सी इसमें से बुक्स तुम्हारे लिए सूटेड है एज पर योर नीड्स. यहाँ से तुम्हें बेसिक टॉपिक्स करने हैं. इजी तो कोई भी आईक्यूएम की बुक नहीं होती, तो अगेन दे आर मोस्टली मीडियम एंड हार्ड. दिस इज अ बुक जो हमारे टाइम से चलते आ रही है, ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ये कैसी बुक है जो कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी ले लेते हैं. बुक को किस तरीके से रीड करना है, हमने मैथ्स जर्नी को डिफरेंट लेवल्स के अंदर ब्रेक कर दिया. Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. बहुत सारे बच्चे इस सेशन का डिमांड कर रहे थे. We recommend a lot of books for IOQM, RMO, INMO, these kind of exams. And of course, it is not possible for all the students to go through all the books, right? Because time limited ही होता है. And of course, given 2-3 years, तो शायद कुछ बच्चे सब books handle कर लेते हैं. But again, given limited time, it is not possible to go through all the books. And this is one question which is asked, कि sir, which is the best book for Olympiad, or is this a good book? Please understand, no book is bad. Every book has been designed, after taking care of for the certain kind of audience. तो हर ऑथर के दिमाग के अंदर कुछ ऑडियंस होती है एंड उसके हिसाब से वो बुक डिजाइन की जाती है, राइट? सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द बुक्स दैट वी नॉर्मली रेकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स, एज पर योर स्टडिंग हैबिट्स, as per your personality, you can go through and take all these books. It is important, and this is something that we always recommend, that you should be having certain books as hard copy. For example, I have a lot of these books, right? So Mathematical Circles, Problem Solving Strategies by Arthur Angel. Then this is Puzzles by Martin Gardner, Excursion in Mathematics, David Burton, Number Theory का बहुत अच्छा book है. Then Pre-College Mathematics, one of the classic books. ये हमारे टाइम से ये बुक चलती आ रही है. And of course, last but not the least is VOS IOQM book, right? So all these books, I have these as hard copy, and it is easy for me to access these books whenever I feel like, and I never get bored of these books. After having taught for Olympiad for the last many years, and also before that, even when I was a student, I used to have some of these books. And ये books मैं तब से पढ़ रहा हूँ, और अभी भी जब भी whenever I feel bored, I take up some of these books and just enjoy mathematics. And मैं हमेशा ये recommend करता हूँ, even the students who, my students, some of the students who get into IITs or who are able to clear the highest level of Olympiads, I ask them to have this book along with you whenever you get into the college, because this is something that is going to teach you something. Even if you have done a problem before, even if you have seen those things before, it is always going to, you're always going to learn something or the else. So of course, बहुत सारी हार्ड कॉपीज भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे बच्चों के लिए. एंड तो कुछ हार्ड कॉपीज ज़रूर होनी चाहिए, एक दो बुक्स की हार्ड कॉपीज, बट वो कौन सी होनी चाहिए, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनैलिटी, राइट? सो देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो I would say who require a lot of basic examples to build their confidence up, and then they would want to go to the highest possible level. There are certain students who may not require such basic examples a lot, right? So I had a lot of friends when I was preparing for JEE. उनको बहुत कम solved examples चाहिए होते थे. Whatever they could do in the class, and they were able to solve the questions of the highest level after coming coming back from the class, right? So there are different personalities. I was of the kind, I was the R.D. Sharma kind, कि जब भी मैं कुछ पढ़ता था, मुझे कोई पढ़ाता था, उससे बाद मुझे R.D. Sharma kind of बुक चाहिए होती थी 11th में, 12th में, so that I am able to build that confidence of doing the basic questions, formula based questions चाहे हो, so that it improved my confidence. And after I got the feel of the topic by doing those basic questions, then I would move up to the highest level. It required time, but again I was ready to sacrifice my sleep because of this, right? So everyone has a different personality based on कि तुमने बचपन में कितना problem solving किया हुआ है. When I say problem solving, I'm not talking about school math. I'm talking about the things other than school math that you've done, maybe solved problems, solved puzzles, done a lot of Sudokus, solved a lot of these kind of Martin Gardner kind of books, right? So बहुत सारे बच्चों ने इस तरह की चीजें की होती, तो उनका ऑलरेडी जो माइंड है वो शेप ले चुका होता है, तो they require certain other kinds of books, right? So in this session I'm going to talk about all these kinds of books जो मैंने बताई हैं, and lot others जो हम recommend करते हैं. And on the basis of this you can make a call कि कौन सी इसमें से books तुम्हारे लिए suited है as per your needs, and also whether to get that hard copy or not, that is totally your choice.
For any kind of help, you can always connect me over Telegram. That is my Telegram ID @Abhay86Mahajan. And also for these kind of sessions, make sure you subscribe to this channel. If you're new to this, you have to subscribe to this channel because इस तरह में कि additional informational videos and also academic videos are there on this particular channel. Alright, so this is the syllabi. This is the defined syllabi of IOQM, RMO, INMO on the HBCSE website. ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं. If you want, you can take the screenshot also. But you can find this on the HBCSE website. So this is the entire syllabi of IOQM, RMO, INMO. Now, what are the certain kinds of books? So again, इसको हमने दो categories के अंदर divide किया है. Grades 7th, 8th, 9th and then 10th onwards. And of course, it does not mean if you're in 7th or 8th or 9th, you cannot look at the books of 9th, 10th, 11th and 12th because we have a lot of students studying with us since grade 6, grade 7th जिन्होंने ऑलरेडी 10th तक का सिलेबस कर लिया है, एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमारे अच्छे लेवल्स पे हैं, हमारे साथ लेवल 8, लेवल 9 पे पहुंच चुके हैं. सो ऑफ कोर्स उनके लिए ऑफ कोर्स द बुक्स व्हिच आई एम गोइंग टू रिकमेंड फॉर 10th, 11th, 12th आर गोइंग टू मेक मोर सेंस. बट द स्टार्टिंग थिंग इज अगेन NCERT एग्जाम्पलर. यहाँ से तुम्हें बेसिक टॉपिक्स करने हैं, जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे उठाने हैं. एंड ये जो NCERTs हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, इट डज नॉट टेक मोर देन 2 months. 2 महीने से ज़्यादा, 2 महीने मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं. नॉर्मली बच्चे उससे काफ़ी कम में कर लेते हैं. 2 months आर मोर देन इनफ टू कंप्लीट 1 grade. चाहे वो हम 8th बोल लें, चाहे 9th बोल लें, चाहे 10th बोल लें, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगते हैं. तो ये सबसे पहली चीज़ करनी है. दिस इज द बेसिक. इसके बाद these are the books and इसके बाद भी है. So again, इनको हमने किस तरह से कैटेगराइज किया है कि कितना थ्योरी है, कितने सॉल्व एग्जांपल्स हैं, कितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस हैं, आंसर्स कितनों के पास हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, एंड ऑफ कोर्स कौन से बुक कौन से मेजॉरिटी टॉपिक के लिए रिकमेंडेड है एंड क्या लेवल है. राइट, सो इजी, मीडियम, हार्ड. इजी तो कोई भी IOQM की बुक नहीं होती. सो अगेन दे आर मोस्टली मीडियम एंड हार्ड. So we talk about VOS IOQM book, right? So ये हमारी टीम के द्वारा लिखी गई बुक है. And we try to solve a lot of problems which other books did not have. For example, solutions नहीं थे, सब topic wise problem नहीं थे, IOQM pattern के हिसाब से problem नहीं थे, तो उनके हिसाब से हमने ये book recommend किया. So of course it has relevant theory, solve examples, sub topic wise, practice problems, answers हैं, solutions हैं. So everything is there, right? So and all the four things are covered. And ये IOQM and RMO तक valid रहती है ये वाली बुक. CTPCM challenges and thrills of pre-college mathematics. मैं ये बुक निकाल के भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को. Right, so this is how the book looks like. And ये ऐसी बुक है जो मेरे टाइम पे, तो मैंने भी अपने टाइम पे जब मैथ्स ओलंपियाड JEE की तैयारी करा था, तो उस टाइम पे मैथ्स ओलंपियाड का इतना ज़रा अवेयरनेस नहीं था. बट अगेन समवन टोल्ड मी अबाउट दिस बुक एंड आई बॉट दिस. ये तो नया वर्जन है. आई ऑल्सो हैव द ओल्डर वर्जन ऑफ CTPCM जो कि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. सो ऑफ कोर्स थ्योरी डिटेल है. देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आंसर्स एंड सॉल्यूशंस की मेजर दिक्कत है इसके अंदर. Right, so solutions are not there. Most of the problems are proof based, but for someone who likes doing subjective problem, आराम से करना चाहता है, basic से अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, this is a book जो हमारे टाइम से चलते आ रही है. And of course, I would categorize it in the medium category. Then Higher Algebra by Hall and Knight, one of the best books of algebra. And of course, theory is very brief. Solved examples are very few, but again, it has a lot of unsolved problems. They are amazing to solve. उसके सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए हैं. एंड अलजेब्रा के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स से मानी जाती है. एंड ऑफ कोर्स इट इज एट मीडियम लेवल. देन देयर इज प्रॉब्लम प्राइमर. राइट, सो प्रॉब्लम प्राइमर, CTPCM, these are the books which are also there on the HBCSE. These are the books recommended by HBCSE also. So there are tricks for solving the problems. ठीक है, थ्योरी नहीं है इतनी ज़रा, but there are certain tricks for solving the problem. There are no solved examples, but there are amazing problems. So 25 problems for each topic. And there of course there are solutions also and answers also. चारों टॉपिक्स के कवर किए जाते हैं इसके अंदर. नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, एंड इट इज मीडियम लेवल. गोइंग फॉरवर्ड, देन देयर इज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन. सो दिस इज हाउ द book looks like. Solve examples are very few, but this is one of someone who has to learn, who wants to learn number theory at the highest level. This is the book that you should not be missing. Answers बिल्कुल हैं, solutions नहीं है. दिस इज द ड्रॉबैक. नंबर थ्योरी एंड इट इज डिफिकल्ट लेवल. इनफैक्ट मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि IOQM, RMO, INMO तक फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर रेलिवेंट. बट इफ यू वांट टू गो एंड लर्न नंबर थ्योरी इन मोर डिटेल,
तो तुम 5 ऑनवर्ड्स, चैप्टर्स 5 ऑनवर्ड्स 6 7 8 वाले भी चैप्टर्स कर सकते हो, बट आरएमओ इनवो तक फर्स्ट 5 चैप्टर्स अगर तुम अच्छे तरीके से कर लेते हो, सारे प्रॉब्लम्स लगा लेते हो, आई थिंक यू विल हैव अ गुड ग्राफ्स. It is going to take time because solutions are not there, so you'll have to work yourself on these problems. Then there is Mathematical Circles, one of the books which probably I am going to keep with me even after I retire. ठीक है, तो मैं अगर रिटायर हो भी जाता हूँ, हो जाऊँ, तब भी ये book is something which is always going to be staying with me because I like solving this book, and of course the students who have this book again they have the same view. ये एक ऐसी book है जो कि तुम्हारा IQ level बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है. Even if you have solved a lot of these problems, again looking back at these problems again is going to give you a new kind of confidence. Theory डिटेल है, सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉरी यहाँ पर थ्योरी नहीं है इसके अंदर, यहाँ ना के बराबर है. सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत कम है, बट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आंसर्स हैं, एंड सोल्यूशंस के हिंट्स दिए हुए हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हिंट्स दिए हुए हैं. मेनली ये कॉम्बिनेटर्स से यूज होती है एंड कुछ नंबर थ्योरी के टॉपिक्स भी हैं. सो गेम्स 1, गेम्स 2, ऑल दीज चैप्टर्स आर देयर इन वेरिएंट्स, राइट. सो ये मीडियम टू हाई लेवल पे बोलेंगे. एंड देन देयर इज पाथफाइंडर जूनियर बाय प्रशांत जैन सर. देयर थ्योरी इज डिटेल्ड, सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आंसर्स एंड सोल्यूशंस. अभी आई थिंक नए वर्जन के अंदर सोल्यूशंस भी आ चुके हैं, पुराने वर्जन में शायद नहीं थे. एंड ऑफ कोर्स इट कवर्स ऑल द 4 एंड द लेवल इज मीडियम, राइट. सो उसके अलावा अगर थोड़ा सा और जेई ओरिएंटेड तुम चीज करना चाहते हो, सो दिस इज प्रॉब्लम प्लस बाय एदास गुप्ता. अगेन ये एक और बुक है अपार्ट फ्रॉम सीटीपीसीएम जो मैं अपने टाइम पे करता था, जेई की प्रैक्टिस के दौरान करता था. ऑफ कोर्स इसमें ओलंपियाड ओरिएंटेड चीजें कम होंगी, बट इफ यू टॉक अबाउट गुड अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, राइट, सो गुड कॉम्बिनेट्रिक्स प्रॉब्लम्स, जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं बेसिकली. कॉम्बिनेट्रिक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज अ जेई पोर्शन, कॉम्बिनेट्रिक्स पूरा आ जाता है जिसके अंदर पीएचपी एंड ये सब कुछ इनवेरिएंस सब कुछ आ जाता है. सो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस इज अमेजिंग. सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रा आर अमेजिंग. अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, तो काइंड जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो अमेजिंग है. इनफैक्ट ये एक ऐसी बुक है जिसके सॉल्व एग्जांपल्स ज्यादा मुश्किल हैं देन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशंस नहीं है, राइट. सो दिस इज अ ड्रॉबैक. अगेन वी हैड टू वर्क अ लॉट ऑन द सॉल्यूशंस एट आवर टाइम. इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे एक सोल्यूशन मैनुअल बनाया था एदास गुप्ता का, जो अब गुम चुका है. बट अगेन आई हैड अ लॉट ऑफ फन सॉल्विंग दिस बुक. जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑन द डिफिकल्ट साइड. And then Excursion in Mathematics. This is another book which is recommended on the website of HPCSE. Excursion in Mathematics भी कुछ ऐसी दिखती है, right? So this is how it looks like, and it's an amazing book. बहुत अच्छी book है ये. Theory है, solve examples हैं, problems हैं, answers हैं, and solutions. कुछ solutions partially दिए हुए हैं. सभी के सभी topics cover करती है. It is medium level. In fact, for the students who want also to prepare for ISI, Indian Statistical Institute of CMI, this is another book जो कि ज़्यादातर सारे बच्चे, सारे टॉपर्स ज़रूर करते हैं कभी ना कभी अपने टाइम पे, ठीक है. एंड इसके अलावा द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7th 8th 9th who want to have a crack at IOQM, the other sources are AMC Class 8, IOQM previous year questions and NMTC sub junior previous year questions तुम कर सकते हो. There are certain topics of grade 11th which are not there in grade 10. For example, trigonometry, functions, arithmetic progressions, geometric progressions, permutation, combination, set theory, basics of straight lines and circles. So this is the other important topics जो तुम्हें करना चाहिए अगर तुम 7th 8th 9th में हो and IOQM की प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हो. अब आते हैं 10th 11th 12th में. Again, as I mentioned, a lot of students who are in grade 8, grade 9th, वो भी depending on the level, ये यहाँ पर इस वाले सेक्शंस की बुक देख सकते हैं. कुछ बुक्स कॉमन है. सो पहली चीज ऑफ कोर्स 10th का तुम्हें ग्रेड एनसीईआरटी करना है. 11th एंड 12th के रेलेवेंट टॉपिक्स जो मैंने पहले मेंशन कर दिए हैं, एग्जाम्पलर इज अ गुड हैंडी थिंग. थोड़ा सिंपल लेवल होता है, बट अगेन ये कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जो तुम्हें करनी है. तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद तुम इन बुक्स पे आ सकते हो जो मैं दिखाने वाला हूँ. सो ऑफ कोर्स वीओएस आईओक्यूएम बुक ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट. सो ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, राइट. सो दिस इज हाउ द बुक looks like, and यहाँ पे भी मतलब सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स, सब टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. देन CTPCM ऑलरेडी डिस्कस. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज बाय आर्थर एंजल. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज PSS बाय आर्थर एंजल. दिस इज हाउ द बुक लुक्स लाइक. अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. दिस इज अनदर बुक विच आई एम गोइंग टू रिटायर विद. ठीक है, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, इस बुक का पीछा नहीं छोड़ूंगा, इस बुक से कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा. दिस इज समथिंग
जो मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है. सो सी इफ वी टॉक अबाउट PSS, थ्योरी ना के बराबर है. सॉल्व एग्जाम्पल्स कुछ कुछ हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आंसर्स हैं एंड सोल्यूशंस हैं. मेनली PSS प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज इज फॉर कॉम्बिनेट्रिक्स. कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए ये मानी जाती है. काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जिसमें सॉल्व करने में, दिमाग लगाने में मजा आता है. एंड मैं इसको डिफिकल्ट साइड पे बोलूंगा. एंड देन हायर अलजेब्रा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बाय हाउल एंड नाइट. एंड देन प्रॉब्लम प्राइमर, अच्छा ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है. इसके अलावा एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन. अगेन फॉर नंबर थ्योरी इफ यू वांट टू मेक अ मार्क, दिस इज द बुक. फर्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लो, डिटेल में कर लो, टाइम लगा कर लो. आई थिंक इससे अच्छी चीज नंबर थ्योरी के अंदर नहीं हो सकती. मैथमेटिकल सर्कल्स डिस्कस एंड पाथफाइंडर जूनियर. इसके अलावा देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम ओरिएंटेड बुक्स. ठीक है, जिसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. सो वन इज द 10 सीरीज बाय T2 Indisco. So 101 algebra problems, 102 combi, 103 trigonometry, 104 number theory, 107 geometry problems. इसके अलावा मतलब ये तो recommended books हैं ही हैं. इसके अलावा 105, 106 भी आती हैं. Challenging problems in geometry by Alfred S. Posamentier. I like this book. And challenging problems in algebra also by the same author. Right. So these are the books which has only problems. And of course the solutions are also given. इनके solutions भी साथ में दिए हुए हैं. इनकी e-books readily available होती हैं. एंड ऑफ कोर्स कोई भी ई बुक तुम्हें अच्छी लगती है, अगर तो सस्ती है, इफ यू कैन अफोर्ड तो मंगवा लो, हार्ड कॉपी मंगवा लो. अगर नहीं है तो यार ये 100, 200, 150 पेजेस की बुक होती है, उसको फोटो कॉपी करवा लो. ठीक है, 100, 200, 150 पेजेस के अंदर ये फोटो कॉपी करवाकर यू कैन कीप इट एज हार्ड कॉपी, बिकॉज इट इज ऑलवेज recommended to solve the problems in hard copy than having a soft copy. ठीक है, हार्ड कॉपी के अंदर यू कैन ऑलवेज मार्क, यू कैन ऑलवेज राइट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, यू कैन मेक मेमोरीज. सॉफ्ट कॉपी में वो मेमोरीज नहीं बनती है. आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज IOKM, RMO, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, इफ इट ओनली टॉक अबाउट एग्जाम्स, दे आर द एग्जाम्स जहां पर हालांकि इतना ज़रा प्रेशर नहीं होता एज कंपेयर टू द एग्जाम्स लाइक JEE और ISI, जहां पर तुम्हें कॉलेज डिसाइड करना होता है. बट अगेन हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी ले लेते हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जो पहली बार इतना बड़ा कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं, नेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं. राइट. सो दे टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो अगेन इट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज उस टाइम पे प्रेशर आता है, सो यू टेंड टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दीज एज हार्ड कॉपी, बिकॉज जब हार्ड कॉपी के अंदर तुम चीजें करते हो, कॉपी सर्कल्स मारते हो, टिक करते हो, तो यू मेक मेमोरीज, यू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम कोई चीज दी हुई है, उसके अलावा कुछ नई चीज किसी और बुक से पता लग गई तो उसके ऊपर कुछ लिख दोगे. So memories जब तुम बनाओगे वो हमेशा याद रहती हैं. Right. So they are going to be a part of your conscious memory and you will always remember those. So it is always better to have the hard copy, and that is why this session I am taking. Right. Because सभी के सभी books की hard copy से तुम confuse हो जाओगे. ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करना है. So it is always better कि इन बुक की soft copy अगर तुम्हारी मिल जाती है वो देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, एंड देन टेक अ कॉल कि किन किन की हार्ड कॉपी मंगवानी है. अगर सबकी हार्ड कॉपी मंगवाओगे तो अगेन वो भी एक अलग टाइप का प्रेशर होता है कि इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने सिर्फ 2 बुक्स की हैं, बाकी बुक्स कर नहीं रहा. राइट. सो यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ गिल्ट. राइट. सो डोंट ऑर्डर ऑल द कॉपीज. तुम इसको ईयर वाइज भी प्लान कर सकते हो कि इस ईयर में मैं मीडियम वाली या इजी वाली बुक्स या मीडियम वाली बुक्स मंगवाऊंगा, एंड अगले ईयर में मैं डिफिकल्ट वाली बुक्स को करना चाहूंगा. यू कैन ऑलवेज डू दैट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम्हें 10th, 11th, 12th में करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम लाइक IOKM, RMO इज AMC क्लास 10, AMC 10 basically, AIME, IOKM previous year question, NMDC junior PYQs, AMC 12 and NMTC inter PYQs. For the students जो INMO तक पहुंच जाते हैं, INMO qualify कर जाते हैं, of course there are these things. In fact, the students who prepare for INMO also, उनको लिए भी हम ये recommend करते हैं before INMO, they should be doing IMO, APMO, EGMO previous year questions, problems. बुक को किस तरीके से रीड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम. इट इज नॉट लाइक योर स्कूल बुक वेर इन एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तुम्हें मेथड भी पता है, तुम उसको सॉल्व कर लोगे. सो अगेन स्कूल्स के अंदर मोस्टली इट इज द कैलकुलेशन, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द मेथड. तुम गलत अगर कर सकते हो तो कैलकुलेशंस के अंदर कर सकते हो. राइट. सो इट इज वेरी अनलाइक. राइट. सो दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी अनलाइक योर स्कूल प्रिपरेशन. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम. You have to think of all the ideas. If there's an unsolved problem, you know all the concepts. So you have to think of all the ideas कि क्या possible ideas हैं जो तुम इसको solve कर सकते हो. And then you need to take a call. Which idea should I start first?
विच आइडिया शुड आई स्टार्ट सेकंड, विच आइडिया शुड आई स्टार्ट थर्ड. अगर आइडिया 1 वर्क नहीं कर रहा देन आइडिया 3 करना है या आइडिया 2 पे जाना है, राइट. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स is something that you have to learn. This is very important, particularly for mathematics. And so this is what I always say. Concept portion के पास जाओ, unsolved theory जब भी theorem कुछ पढ़ते हो तो again before going to the proof, think, try to do that proof yourself. ठीक है, chances are कि नहीं होगा, that's perfectly fine. Chances है कि वो proof तुम खुद से नहीं कर पाओगे, perfectly fine है. But again the proofs को जब तुम study करोगे, it is going to give you a lot of ideas. तुम्हें बहुत सारे आइडिया मिलेंगे. तो प्रूफ तुम्हें इसलिए नहीं याद करना कि तुम से कोई पूछेगा किसका प्रूफ बताओ, फर्मा थ्योरम का प्रूफ बताओ, आइलर ट्यूशन का प्रूफ बताओ. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट. बट अगेन इफ यू गेट इनटू द प्रूफ यू विल लर्न, यू विल एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ आइडियाज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आफ्टर यू डू अ थ्योरम जस्ट स्पेंड टाइम एंड सी कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. व्हाई दिस थ्योरम कम इनटू माय लाइफ. ऐसा क्या था विच आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व बिफोर एंड इस थ्योरम के बाद मैं सॉल्व कर पाऊंगा. Right, so think of it yourself before going to the solved examples, and of course, and you will feel कि यार हाँ जो मैंने सोचा था उसी तरह की application है. And if you're not able to think, that's perfectly fine, but सोचना जरूर है. ठीक है, this is the problem, we are not able to think. हम सोचते ही नहीं है, that is the problem. ठीक है, सोचना है, applications आए, हो सकता है मैच करें, हो सकता है ना मैच करें, that's perfectly fine. ठीक है, so these are the things that you need to do. But इसके ज्यादा important जो है books. ठीक है, a lot of students they come to me after IOQM, they come to me after RMO saying कि सर मैंने सारी बुक्स कर ली, आपकी सारी प्लेलिस्ट पढ़ ली, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए. ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा था, आपके ये इस बैच में था, इस जगह पे था, बट मार्क्स नहीं आए. What has happened? One of the most important things that we forget in IOQM preparation is the IQ, the logic. Building logic is the most important thing if you want to crack these kind of exams. IOQM, RMO, INMO, ISI, JEE, Advanced. इसके अलावा अगर IQ नहीं है, if you don't have the किस तरीके से इसको aptitude नहीं है, you will not be able to get or score top marks, top ranks in these kind of exams. So this is very important. You have to try and build IQ, and that is why मैं हमेशा मतलब there are a lot of books. Puzzles होती हैं, lot of thought puzzles होती हैं, सुडोकोस होते हैं. This is one of the books which I recommend to the students, Martin Gardner. And इसकी Martin Gardner की बहुत सारी और भी series हैं, right? So a lot of students start these books in grade 5th, grade 6th, grade 7th, and they are able to build. एक ही चीज़ है यार, टाइम स्पेंड करोगे, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, अपने आप डेवलप हो जाएंगी. एंड अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे, अगर तुम बोलोगे अच्छा ये फॉर्मूला है, ये दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज हाउ आई डू, तो उससे हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन हो जाए जो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व गुड प्रॉब्लम्स ऑफ IOQM, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व गुड प्रॉब्लम्स ऑफ RMO, राइट. सो डिफरेंस जो है दैट इज द थॉट, लॉजिक, IQ, एप्टीट्यूड, इसको बिल्ड करना होता है. ओके, ऑफ कोर्स इसके अलावा मतलब ये तो हमारी यूट्यूब सीरीज जो है जो चल रही हैं फर्स्ट टाइमर्स के लिए, IOQM 2021, 2022, 2022 का सीरीज, सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 2023, 2024 का सीरीज, अभी मैं 2025 का सीरीज बना रहा हूँ जो कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए अभी चल रही है. एंड आफ्टर सर्टेन टाइम मैं उन बच्चों के लिए जो एक्सपीरियंस है उनके लिए शुरू कर दूंगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए. सो दिस इज वन पॉइंट सोल्यूशन ऑफ ऑल योर मैथमेटिकल नीड्स. सारी की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, होम पेज में पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है. IOQM हो, RM हो, कॉन्सेप्ट्स की अलग वीडियोस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स INMO के हमने सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे. सो कैन यू ऑलवेज गो थ्रू दीज सीरीज. एज आई वाज मेंशनिंग, बुक्स के अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलप करनी होती है दैट इज बिल्डिंग IQ. तो अगर IQ नहीं है, तुम सोच नहीं पाते हो, तो जितनी मर्जी है ढेर बुक्स कर लो, उसका फायदा नहीं होगा. इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड IQ. IQ कैसे बिल्ड कर सकते हो? देयर आर लॉट ऑफ थॉट पजल्स. ठीक है, यहाँ पे इन बुक्स के अंदर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज है, फिर मैथमेटिकल सर्कल्स है, इन तरह में बहुत सारे स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूंगा बट बहुत सारे थॉट पजल्स दिए हुए हैं जिन पे तुम्हें टाइम स्पेंड करना होगा. एंड दिस इज वन थिंग दैट वी डू इन आवर क्लासेस अ लॉट. इनफैक्ट हमारा जो टॉप प्रायोरिटी रहता है, इट इज नॉट द कंटेंट, इट इज दिस, right? So that is why you are able to see these kind of results which we have been producing, India's best result for the past 3 years in RMO, INMO, IOQM, right? So this is the reason, there is a reason, क्योंकि हम यहाँ पे content available है ना यार, YouTube पे available है, books पे available है. What is the difference? The difference is this, right? So this is what we develop.
the logic, building IQ, ideas, discussions class के अंदर. This is an important part of our courses. And of course, we ask students to give a lot of time. इन तीनों के बिना अगर तुम कंटेंट पे ध्यान देते हो, it is never going to help you. Never going to help you. ठीक है, तुम अगली बार भी यही चीज लेकर आओगे कि सर मैंने सारी बुक्स पढ़ ली फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, मैंने सारी आपकी सीरीज देख ली फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज इन तीनों पे वर्क ही नहीं हो रहा है. इन तीनों पे वर्क करना है. एंड दिस इज समथिंग दैट वी डू इन आवर बैचेस एंड ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट. सो ऑफ कोर्स यू कैन गेट दीज बुक्स एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कोर्सेज. जहाँ जैसे कि मैंने बोला, द कोर फिलोसफी ऑफ आवर कोर्सेज इज बिल्डिंग IQ. We put a lot of stress on discussions. And हमने मैथ्स जर्नी को डिफरेंट लेवल्स के अंदर ब्रेक कर दिया, लेवल 3 to level 10, level 10 being the highest. level 10 उन्हीं बच्चों को मिलता है जो इन more qualified होते हैं, right? So we train them to be a part of the team to help them in their college applications in MITs or Ivy Leagues. And level 8 and level 9 also have restricted entries based on their IOQM scores. And up till level 7, the things are open. Level 7 is the course जो IOQM और RMO के लिए हमारा होता है. It's a flagship course. And अगर तुमने 10 तक की चीज़ें कर ली हैं, बेसिक चीज़ें आती हैं, then you can be part of level 7. ठीक है, so level 8 है, right? So all these things I've already explained in separate videos. You can always check. Right? So this is all about level 8. मैं level 7 explain कर देता हूँ. So level 7, one of the core skills that we develop is critical thinking, out of the box ideas. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, किस तरीके से नए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अप्रोचेस हम यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करना है, किस तरीके से बैकवर्ड वर्क करना है, assumptions, guesswork, pattern identification. So all these things, all these methods we take care of. And habits are asking questions, building interest, self-learning, knowledge sharing, summarizing ideas, notes making. These are the different habits which get formed in level 7. These are the topics that we cover. Again, the core philosophy is building logic, improving IQ, aptitude. उसके लिए हम इन टॉपिक्स का हेल्प लेते हैं, right? We take the help of these topics to build those core skills, right? So of course, उससे हेल्प फायदा क्या होता है कि मैथ भी सीखने को मिल रहा है. ठीक है, तो मैथ सीखने को मिल रहा है तो ओलंपियाड भी क्लियर हो रहे हैं, right? So this is how we go about it. ऐसा नहीं है कि हम IOQM RMO को क्लियर करना चाह रहे हैं इसलिए ये करवा रहे हैं. हम एप्टीट्यूड को डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए इसकी हेल्प ले रहे हैं. एंड इससे एप्टीट्यूड डेवलप होता है, इससे लॉजिक डेवलप हो रहा है जिस तरीके से हम करवाते हैं, एंड उससे तुम्हारे ओलंपियाड्स क्लियर हो रहे हैं. एंड द बैच इज फॉर 12,000 rupees. इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन अप्रैल, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 to 6:30 PM. द रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. एंड ऑफ कोर्स अगर तुम 9th और 10th में पहली बार ओलंपियाड के अंदर जा रहे हो तो लेवल 7 मत लेना, तो मुश्किल लगेगा. तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ लेवल 6. दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड 9th एंड 10th करेंटली. 8th तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है स्कूल्स का. देन ऑफ कोर्स वी टेक ओवर एंड अगेन कोर फिलोसफी, बिल्डिंग लॉजिक विद दीज टॉपिक्स. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट इन अप्रैल एज वेल. 10,000 rupees. द batch is going to start in April, 5 to 6:30 PM, Monday, Wednesday, Friday. You can be a part of this batch. Okay, and there is level 5 for grade 7th and 8th. So 7th और 8th के अंदर भी again these are the core skills that target exams: mathematical kangaroo, NMTC, AMC 8, and these are the topics that we use to take the help of to improve your IQ. Core philosophy, improving IQ, logic, building skills. Okay, so this is going to be taken by me, 10,000 rupees. The link is there in the description box. You can be a part of this. Okay, and make sure you subscribe to this. अगर अच्छा लगा, मजा आया, इस सेशन को सब्सक्राइब कर लेना. इस तरह की बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम करने वाले हैं, करते रहते हैं. You don't want to be missing out on this awesome content. Hope you've enjoyed this. Take care. God bless you. If you have any questions, you can put this in the comment section. I will definitely reply to those. God bless you. Bye all.